welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. So last 50 to 45 days ही बचे हुए हैं आपके आने वाले एग्जाम्स को, CS एग्जाम्स को, and then there were a lot of students who were constantly messaging a lot of different scenarios in which they are, and that is what they wanted कि एक वीडियो बना लो जिसमें आप इन डिटेल समझा सको कि आने वाले दिनों में अगर ये सारी चीज़ें भी पेंडिंग है तो what are the things that we should focus on, what should be our strategy for the coming days, which is what we are going to exactly do in today's video. So do watch the entire video till the end, सारा कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा. So basically आगे कितने जो भी दिन बचे हैं आपके हाथ में उसको स्टार्ट टू एंड कैसे प्लान करना है वो सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करने वाला है. So do watch the entire video, and for anybody who is viewing my channel for the first time, hello everybody, this is Angi Sangvi, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to not miss any update. Basically there are quite some different messages that you all had been sending me. See, ideally what I personally thought that until now for at least those people who were thinking कि मुझे 2 ग्रुप ही देना है उनका तो आई वॉज अज्यूमिंग कि एटलीस्ट पोर्शन यानी कि लेक्चर व्यूइंग करके तो हो गया होगा. बट नाउ to be honest, this is what my thinking was, but a lot of you all were messaging me due to whatsoever reasons that कहीं ना कहीं lecture ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है, and then there's a doubt कि हम plan कैसे करें, how should we do, lecture करें कि खुद का self study करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And there's a very ideal solution to this thing. Firstly, understand what is your personal situation like, which is what I always tell कि आपको पता होना चाहिए कि why is it getting so delayed, because okay, अभी के लिए you can consider yourself that whatever has happened I have to forget it so that जो भी अभी आने वाला टाइम बचा है that I use it effectively. So one simple solution which even I did, but just understand what quantum, मेरा 10% जितना पोर्शन ही बचा हुआ था. So then what I had decided is that I will start my self study the day I thought I would start my self study itself. मैंने उसमें डिले किया ही नहीं था because I knew कि क्लासेस का पढ़ा लिया, मुझे सब चीज़ समझ गई है. बट अंटिल एंड अनलेस आई माई सेल्फ स्टडी दोज थिंग्स देयर इज नो चांस दैट आई एम गोइंग टू बी that confident enough that I could appear the papers. So one simple midway solution is spend nearly 2 hours of your day in lecture viewing. If only 10% of your portion is pending, you can either be giving, somebody is giving group 1 group 2, उसका कोई मतलब नहीं है इससे. But understand अगर 10% of the portion जितना बचा है 2-3 घंटा दिन में दो, उससे ज़्यादा मत दो. And if you want, start stretching your days. If you feel that time is such a big concern for you, start stretching your days. जितना अभी तक पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा टाइम डालो. अगर अभी तक 7 घंटे पढ़ रहे थे, ट्राई एटलीस्ट 8 to 10 पे जाओ, 10 to 12 पे जाओ. दैट्स हाउ यू विल फाइंड द डे ऑल्सो टू बी लॉन्गर, तो ज़्यादा चीज़ें कवर होगी. सो जस्ट ट्राई दैट 2 to 3 hours you will give dedicatedly towards that thing. वंस यू आर डन विद दैट थिंग, सबसे पहले लेक्चर व्यूइंग को ही प्रायोरिटी देना. ऐसा ना हो कि लेक्चर व्यूइंग पूरा ही छूट जाए, बिकॉज अंटिल दैट लेक्चर व्यूइंग 10% विल नॉट गेट ओवर, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दैट 10% ऑल्सो. सो वन सिंपल सोल्यूशन इज 2-3 घंटे देते रहो दिन का, एंड उसके बाद का जो भी दिन है सारा कुछ सेल्फ स्टडी पे. सो दैट इज वॉट वन थिंग विच आई पर्सनली फील इज द डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग समवेयर दैट यू हैव लिमिटेड टाइम. सेल्फ स्टडी का टाइम आपको एक्स्ट्रा कहीं से नहीं मिलने वाला है जस्ट बिकॉज यू took more time in just lecture viewing. So self study is extremely important. लास्ट मिनट पे मत डालो बिकॉज वो नहीं होता है, लास्ट मिनट पे होने वाली चीज़ ही नहीं है सेल्फ स्टडी. सो एटलीस्ट द पोर्शन 90% तो आपका पढ़ के हो गया. स्टार्ट विद दैट 90% देन एंड देयर. 90% का पोर्शन जो आपका हो गया है उसको आप पहले रिवाइज करोगे. एटलीस्ट फर्स्ट रीड जो आपने क्लासेस के साथ की होगी, इस रीड में आप इंश्योर करोगे you have adequate notes, not for at least all the chapters but at least some chapters which you personally feel कि इतने घंटे में if you have only 15 to 16 hours in your hand, you need to have 6 to 7 chapters which are टोटली कंसाइज इन द वे माइंड मैप बना लो, या तो उस चीज़ का नोट्स बना लो, हैंड रिटन ले लो, या किसी चीज़ का प्रिंट आउट ले लो. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट वंस यू फॉलो और यूज दैट पर्टिकुलर नोट, डोंट स्विच ऑन. अगर कोई और चीज़ अच्छी दिख रही है और नोट्स अच्छे दिख रहे हैं उसको देख के स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज योर आईज आर समवेयर ट्रेन कि मुझे यही चीज़ पढ़ना है. एंड दिस इज द पावर ऑफ विजुअल इफेक्ट्स विच आई टेल अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये जो सेल्फ स्टडी वाला फेज है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड जितना आपसे हो सके सेल्फ स्टडी इनिशिएट कर दो. एंड इफ यू आर समबडी जिसका भी बहुत ज़्यादा क्वांटम का पोर्शन बचा है, विच इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एक्चुअली मैसेजिंग मी कि नियरली 40% जितना पोर्शन हमारा अभी भी बचा हुआ है, तो भी मैं बोलूँगी इवन इन योर पर्टिकुलर केस आई पर्सनली फील देर इज़ नो पॉइंट इन जस्ट थिंकिंग कि मैं पूरा 12 घंटे लेक्चर व्यूइंग कर दूँगी. इतना प्रैक्टिकली आप कर भी नहीं पाओगे. 12 घंटे सिर्फ लेक्चर देखना, इट्स नॉट ईजी. ठीक है. सो वन सिंपल सोल्यूशन इज स्टार्ट टेकिंग हाफ ऑफ योर डे, लाइक 50% इफ यू गोइंग फॉर लेक्चर व्यूइंग, बाकी का जो 50% बचा है देन इन्वेस्ट दैट 50% इनटू सेल्फ स्टडी. बिकॉज ये अभी आपको लग रहा है कि बाद में जाके हो जाएगा,
सेल्फ स्टडी इज़ नॉट समथिंग कि आप सोचोगे कि बाद में हो जाएगा और वो इतना आसानी से हो जाए. सो दिस इज़ वन सिंपल सोल्यूशन विच इवन आई हैड यूज्ड. सो फर्स्टली डोंट जस्ट पैनिक थिंकिंग कि अभी तक नहीं हुआ क्या होगा. You know that it is happened for some reason. Understand what is that reason, and even if it's valid, not valid, for now just forget all of those things. If you really feel कि आने वाला जो भी टाइम है उसको ऑप्टिमाइज करना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है, forget all of those things. So this is one simple solution which I personally feel. One thing which I personally feel is when you do this particular self study, keep these few things in your mind. Firstly, as I told you, have your markings very clear. Secondly, as I told you, जो भी बुक से पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ना है, सारा कुछ ये रीड में क्लियर होना चाहिए. ऐसा ना हो लास्ट मिनट तक आप बुक ही ढूंढते रह जाओ कि कहाँ से मुझे कौन सी चीज़ें पढ़नी है. थर्डली, आई पर्सनली फील सेल्फ स्टडी में अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें याद नहीं आ रही है, विच इज़ ऑल्सो वॉट यूज टू हैपन विथ मी, बिकॉज वो चीज़ का लेक्चर ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए थे वो पढ़ाए हुए, एंड समटाइम्स यू फील दैट इट्स समथिंग दैट यू नेवर सीन ओनली. तो अगर कहीं पे भी स्टक ऐसा हो फीलिंग आ रहा है कि स्टक फीलिंग आ रहा है, वन सिंपल सोल्यूशन, स्टार्ट सॉल्विंग योर स्कैनर्स. देखो स्कैनर्स तो करना ही है, सो इट्स बेटर यू स्टार्ट सॉल्विंग स्कैनर्स फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. स्कैनर्स में एटलीस्ट आपको PYQ मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सारी कोई चीज़ मिल जाएगी, विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. अगर सिर्फ बेयर आपने मॉड्यूल का पढ़ लिया, विच इज़ द बेस्ट सोर्स विच आई पर्सनली फील, बट वो चीज़ को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब फ्रेम करेंगे तब हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दैट इज समथिंग विच स्कैनर्स वुड प्रेफर. लाइक आई फील दैट यू शुड प्रेफर स्कैनर्स फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो अभी साथ साथ में. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. लास्टली, आई फील दैट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी, understand one thing, that you just don't have to read. See, first read जब भी हम करते हैं क्लासेस के साथ, you are barely, आप खुद से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो दैट इन दैट पर्टिकुलर रीड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एट दैट पॉइंट योर फोकस इज समवेयर कि कंसेप्चुअली समझ लूँ पहले सारी चीज़ें, उसके बाद रिटेंशन पे जाती हूँ. इन दिस रीड इंश्योर एटलीस्ट फ्यू कीवर्ड्स. मैं हमेशा बोलती हूँ कीवर्ड्स को याद करने की ट्राई करो. डोंट पुट योर ओन कीवर्ड्स. जो भी कीवर्ड्स है, कोई भी 5 से 7 कीवर्ड्स होते हैं आंसर के, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल दोज कीवर्ड्स. वंस यू रेड द एंटायर चैप्टर, take 5 minutes time and just close your eyes and just see how that chapter, close your eyes and try to visualize कि how that chapter actually looked like. क्या क्या चीज़ें थी, कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कौन से कम इंपॉर्टेंट थे, कौन सी चीज़ को कौन से कलर से हाईलाइट किया. आई एम पर्सनली टेलिंग यू, ये जो विजुअल इफेक्ट होता है ना वो बहुत मैटर करता है. ड्यूरिंग माई टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग माई पेपर्स, आई कुड रिमेंबर हाउ दैट पेज वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील, मोर देन जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज, start to recall, because at the end of the day we all know that somewhere for us एग्जाम में जाके चीज़ें लिखनी है, सिर्फ समझानी होती तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ईजी होती. सो इफ़ यू वांट टू राइट, कहीं ना कहीं मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप हर कोई चीज़ एंड हर कोई चीज़ रटो, इट्स इम्पॉसिबल. कॉन्सेप्चुअली समझो एंड उसका लॉजिक समझो, और उसके बाद जो भी कीवर्ड्स है उसको पकड़ के रखो. अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें कब करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा स्कैनर उठाओ और पास पेपर का ट्रेंड देखो. सबसे पहले आप यही करोगे. सी, वन थिंग विच आई पर्सनली फील, इफ़ यू नो यू हैव लिमिटेड टाइम इन योर हैंड, वन स्मार्ट थिंग विच यू कैन डू इज यूज द 80-20 रूल. नियरली 80% जो मार्क्स आपके होते हैं वो 20% पोर्शन से आपको मिल सकते हैं. नाउ हाउ, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बेसिकली देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल, जिसमें वो यही समझा रहे कि 20% मेहनत करके अगर 80% रिजल्ट कहीं से मिल पा रहा है, व्हाई नॉट टू डू दोज थिंग्स फर्स्ट. सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी स्कैर्ड कि अभी बहुत टाइम कम बचा है. स्मार्टली प्ले करो. जो भी स्कैनर में आपको इंपॉर्टेंट पास पेपर्स में आपको समझ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स बहुत लुक्रेटिव है. अगर आपने पूरा सिलेबस देखा है तो भी आपको कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर्स का बहुत अच्छा वेटेज होता है. पिक आउट दोज चैप्टर्स फर्स्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स. 7 सब्जेक्ट लेके बैठो और हर एक में से 10-10 चैप्टर्स ऐसे ढूंढ लो जो क्रीम चैप्टर्स है, लुक्रेटिव है, मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से बनते हैं, वैसे चैप्टर्स उठा लोगे. नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू फ्रॉम दोज चैप्टर्स ऑल्सो, यू विल टेक 20% of that chapter which has maximum times which ICSI has taken questions from that particular concept. So which is what I'm trying to say, ये 20% कोई ऐसी चीज़ है that can give you 80% of the results, then why not to do and focus on those things first, which is what I personally feel that at this point if you know कि पोर्शन बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें करें, कहाँ से कौन सी करें, एक सिंपल सोल्यूशन है, पहले 20% ऐसा उठाओ जो बहुत लुक्रेटिव है. नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, कंपनी लॉ में
आप देख लो AGM, EGM, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स, KMP, ये सारे चैप्टर्स without saying it goes that these chapters are extremely important and इससे क्वेश्चन बनते ही है. Now there are some small chapters like CSR, dividend, इससे भी on an average एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क का, and these are comparatively small chapters also, तो टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा ये सब चीज़ों में. So what I personally feel is one simple solution, अभी के लिए आप समझ लो that you need to focus on 20% of that syllabus from each and every subject which is going to fetch you 80% of your marks. So ये अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, पास पेपर का काम यहाँ पे ही है. इट विल जस्ट हेल्प यू नो कौन सी चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस देना है. अदरवाइज यू विल थिंक कि 100% पोर्शन पूरा करना है, उसका प्रेशर लोगे और टाइम बहुत कम लग रहा है. पहले हमें 20% पे ही फोकस करना है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई पर्सनली फील इज स्ट्रैटेजी बना के थोड़ा करो. सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने से बेटर एग्जाम पास होने के लिए पढ़ना है. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू ऑल, एनीबडी हु नोज कि राइटिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, स्टार्ट विथ राइटिंग प्रैक्टिस. क्योंकि ऐसा होगा कि अभी सब पढ़ा है, एग्जाम में जाके समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में कौन सी चीज़ें लिखनी है, कि स्टडी अलग फॉर्मेट में होती है. अगर ये सब का भी आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, देन गो एंड जस्ट सी द पास्ट पेपर्स. नाउ आई हैव मेड वन फुल डिटेल वीडियो कि कैसे आप 30 to 40 मिनट्स में दिन का एक पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो. इन दिस आई हैव एक्चुअली गिवन यू टेक्निक कि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, एंड 30 to 40 मिनट्स में आप पास्ट पेपर्स कर सकते हो. एंड मैंने ऐसे 5 साल के पास्ट पेपर्स ऐसे ही देख के किए थे, which helped me a lot to secure a rank, helped me a lot to clear the exam. So this is one thing which I personally feel that don't think कि अभी मेरा पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, मैं रिविजन नहीं कर सकती, मैं पास पेपर तो कैसे ही देखूंगी. Don't think all of those things. That time is gone, but now the time is कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है. Start dividing and allocating equal attention to all of these important things. So this is one simple solution according to me. अगर writing is an issue for you, कुछ नहीं तो एटलीस्ट दिन का 10 मिनट निकालो और एक आंसर लिखो एंड ट्राई टू टेक दोज आंसर्स विच आर पास पेपर क्वेश्चंस ऑफ ICSI ओनली. सो नाउ फॉर दोज हु आर इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट, आई पर्सनली फील कि अगर अच्छे स्टेट में हो प्रीलिम्स देना बनता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि 100 मार्क का पूरा मिक्स क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है, कैसे 3 घंटे में आपसे कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आप कैसे चीज़ें मैनेज कर रहे हो, कोई चीज़ आपने प्लान कर लिया, ऑप्शनल है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग. सो आई पर्सनली फील कि जो भी आपका अभी का टाइम बचा है ना, सपोजिंगली इफ योर एग्जाम इज देयर, तो उसके 15 से 20 दिन पहले एक प्रीलिम्स लिखो इन द सेम ICSI फॉर्मेट विद द सेम एग्जाम टाइमिंग्स. अभी आपका सुबह का टाइमिंग होगा फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, सेम टू सेम आप टाइमिंग्स के साथ एक पूरा पेपर देखो एंड पूरा एक पेपर लिखो, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर इज एक्चुअल प्रॉब्लम लाइंग देयर. सो मेरे हिसाब से ये मैं 15 से 20 दिन पहले क्यों बोल रही हूँ, it has to end before 20 days because you need time, because if there's something that you need to improve, 15 से 20 दिन उसके बाद आपको चाहिए कि मेरे को ये चीज़ में डाउट लग रहा है, मेरा यहाँ पे वीकनेस है, आई नीड मोर टाइम फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, एंड फॉर दैट इफ यू डू इट लास्ट वीक में, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बिल्ड प्रेशर. So this is one personal thing which I had particularly understood, that one thing which I feel that prelims बहुत ज़्यादा important है, give it in the same ICSI format, and अगर आप prelims लिख भी रहे हो, राइट ऑफ ICSI पास्ट पेपर ओनली, विच इज़ वॉट आई पर्टिकुलरली प्रेफर. अगर आपने बहुत दे दी है, आपने बहुत पेपर्स लिख लिया और अभी बचे नहीं है, एंड यू आर राइटिंग सम अदर पेपर विच इज़ ओके, बट जस्ट इंश्योर दैट पेपर ऑल्सो हैज़ अ वैलिड गाइडलाइन आंसर या सोल्यूशन उसका होना चाहिए. ऐसे ही कोई भी चीज़ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील दैट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू ट्राई टू इनकलकेट, कि एटलीस्ट आने वाले दिनों में हम ये सारी चीज़ों को हमारे स्केड्यूल में बिठा लें, सो दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ईजी. सी वन थिंग is that you need to understand, आप जो पोजिशन में हो, that is something which even you know कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, and that is something which only you know. You still have some time in your hand and you can change things to a next level. But अभी जो भी जितना भी टाइम बचा है, पूरा डिसिप्लिन, पूरा फोकस के साथ करना पड़ेगा, because we have already wasted quite a lot of our time into things that we thought कि चलो ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, which is quite natural, quite normal. जो भी हो गया है सब चीज़ को भूल जाओ, आप अभी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो. एंड टू बी ऑनेस्ट, पासिंग परसेंटेज आप सबको पता है कितना अच्छा निकल रहा है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी टू क्लियर द एग्जाम. थोड़ा और एफर्ट डालोगे ना, थोड़ा सा भी और एफर्ट डालोगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. उसके बाद कभी बुक्स देखनी नहीं है. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील कि अभी जो भी टाइम बचा है, स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. फ़ोन हो, जो भी हो, everything, it is non-negotiable. If you want to clear the exam, अभी बहुत कम टाइम बचा है, these things are non-negotiable. खुद से ही समझ लो कि अभी जितना टाइम बचा है, I want to dedicatedly give it to this particular thing
to my particularly studies, and it's barely any time in your hands now. So this is what I personally feel that you can inculcate. Don't ever think that you've lost it. You've never lost it until the results are actually out. So all the very best, guys. If you still have any other doubts, you can obviously mention in the comments. चाहे तो आप DM भी कर सकते हो इंस्टा पे. But this is one thing which I want to say, that don't lose hope. Everything is absolutely okay. आप जो position में हो, nobody else knows, but only you know. You can still make it. You still have some days in your hand, and make the best of it. If you still have doubts, always mention in the comments or message me. But until then, study well. I'll soon see you guys with another video. Bye bye.